नमस्कार। आज एक्सियम का कैमरा सेक्टर 71 SPR रोड पे है। नन अदर देन सिग्नेचर ग्लोबल। मेरे साथ उनके सेल्स मैनेजर है यहाँ पे एंड इज मिस्टर विनय। आज हम उनसे जानेंगे अबाउट द न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट इज एक्चुअली कमिंग इन सेक्टर 71। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट सेक्टर 71 उसके बारे में जानेंगे। वाई सिग्नेचर ग्लोबल उसके बारे में जानेंगे। फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ की क्यों आपकी बसावट होनी चाहिए, वाई शुड इट बी योर फर्स्ट होम और इफ़ योर इट शुड बी योर सेकेंड होम फॉर दैट मैटर। और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए ROI का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लोकेशन लोकेशन लोकेशन। या हम सारी बातों को स्टार्ट करने के लिए देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ with Mr. Vinay out here, none other than out here. Sir, it has been always a pleasure talking to you. Hi, Shapan. Thank you Good so morning. much. So, हमारा पहला सवाल ये है कि why Signature Global? But उससे भी पहले Signature Global at Sector 71, why does it become a very important part from the investment point of view? कि अगर कोई early stage investor है तो वो माइक्रो मार्केट डिस्कस करते हैं। जैसे हम इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में बात होती है, वी ऑलवेज सर्च कि कौन से सेक्टर्स को हम टारगेट करें फॉर द नेक्स्ट 2 to 4 years। तो जैसे हम इक्विटीज़ में डिस्कस करते हैं उसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर माइक्रो मार्केट्स होती है। दैट इज़ वाई सेक्टर 71 दैट सिट्स ऑन SPR रोड, दैट इज़ कॉल्ड सर्दर्न पेरीफेरी रोड। उसकी इंपॉर्टेंस इस लोकेशन दैट इज़ फॉर द सिग्नेचर ग्लोबल सिटी और इसकी जो पूरी टाउनशिप की जो बनावट है और बसावट होने वाली है फॉर अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट 2031 मास्टर प्लान के हिसाब से, वो हम जानेंगे। सो ओवर टू यू सर। Hi, Shapan. So, to understand, firstly, we need to know whereby the entire development is coming and what is the particular peripheries whereby Signature Global is operating in Sector 71. So, let me just quickly run through you. We are coming from Vatika Chowk. Vatika Chowk has already been given a GMDA nod towards a clover leaf in making now. So the next couple of years you will see a seamless kind of traffic movement from the DMIC Sona Road as well as the Golf Course Extension Road going towards meeting Cloverleaf at NH8. So this particular road whereby we are just situated next to it, this is 150 meters of SPR in making. 150 meter. 150 meters. Mind Okay. you, this is 150 meters, the same configuration as to Dwarka Expressway. Okay. So we can imagine the kind of magnitude and the kind of flow which will be present in the next coming years. As well as we need to understand why this road and why this infrastructure, socially infrastructure is so important. Because the first of all, there is this elevated corridor which is getting done from sector 62, which is coming straight away towards Dadi Sati Chowk, intersecting the SPR, and there's a series of underpasses and the elevated corridor which has been already sanctioned. So similar to a kind of a golf course extension and a golf course road, this road shall be serving the purpose of the social infrastructure as well as the commercial developments which are already in place, and the future of commercials on this road is very important as well. So we try to understand that already this sector 71 to sector 74 lies on SPR. This particular has been already positioned as the next Cyber City 2. After the Cyber City 1, you can already see that the DLF Corporate Greens is already operational in terms of major office spaces. American Express has already taken a land parcel of 6 particular acres from DLF and already built up the first biggest office space in this north sector, whereby it's operating in 6 lakh square feet. Along with that, we have Air India, which is having an incubation center, plus BMW is having a corporate office, and you can see coming down towards like Vatika Underpass, there is a series of commercial projects by various other leading developers which are already operational and be into place. Now, whereby coming to Signature's establishment, this particular sector 71, we have a 23 acres of land parcel into this particular place which is in the terms of commercial development. मतलब just a small interjection sir. मतलब यहाँ for हिंदी ऑडियंस ऑल्सो जी. कि मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इसकी जो बसावट है इन टर्म्स ऑफ इट्स एकरेज, इट्स जी. कवर स्पेस,
कैन यू एक्चुअली नरेट दैट इन हिंदी, मतलब थोड़ा हिंदी वालों Sure, के लिए, तो sure. उनके लिए बहुत आसानी होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, जी कितना बड़ा है, जी। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो सपन इसमें को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, वाटिका अंडरपास पे हमने क्लोवर लीफ सैंक्शन की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और जी क्लोवर लीफ सेकेंड इज लाइंग ऑन NH8। तो हमारी साइट, ये जो पूरी टाउनशिप है, इस पर्टिकुलर टाउनशिप का गेटवे जो बनता है, दैट इज दिस कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ 23 एकर्स, 23 एकड़ का ये हमारा कमर्शियल बनेगा। दिस विल बी द बिगेस्ट मॉल इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एज वेल एज वील हैव अ ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस। मतलब हम ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस बनेंगे इस 23 एकड़ के पार्सल के ऊपर, विच इज़ जो स्ट्रेट SPR के ऊपर पड़ रहा है। अगर तो हम बात करें हमारी टाउनशिप की, आर टाउनशिप इज़ नेस्ल जस्ट ऑपोजिट टू DLF अलामेडा। 84 मीटर्स रोड की कनेक्टिविटी बनती है वहाँ पे। 84 मीटर्स रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज़ ऑलरेडी अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड DLF अलामेडा, जिसमें ऑलरेडी 350-400 गज प्लस के प्लॉट साइजेस हैं, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। इन टर्म्स ऑफ द अपकमिंग डेवलपमेंट, जैसे हम बात करें ROI की या माइक्रो मार्केट्स, तो 71 सेक्टर में देर आर नॉट मेनी प्रोजेक्ट्स एंड वी आर कमिंग अप विद 130 एकड़ की हमारी टाउनशिप। नाउ इफ़ वी आर कमिंग अप इन 130 एकर्स ऑफ ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट, तो हमारा जो इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कमर्शियल है, कमर्शियल है से समवेयर अराउंड 24 एकड़। बाकी का हमारा जो टाइटेनियम, हमारी जो पहली ग्रुप हाउसिंग वहाँ पे आ रही है, दैट इज़ अराउंड 22.5 एकर्स। सो 22.5 एकड़ की हमारी टाइटेनियम शैल बी द फर्स्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन दिस टाउनशिप। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, टाउनशिप में हमारी देयर आर 324 मीटर्स रोड टू ऑग्यूमेंट दी पर्टिकुलर टाउनशिप इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप। ये पूरी हमारी बनेगी, मतलब सो यहाँ पे 24 मीटर की रोड, 24 मीटर की ऐसी 3 रोड्स होंगी अच्छा। हमारे ही टाउनशिप के अंदर, ओके टू गेट कनेक्टिविटी बैंग ऑन SPR। मतलब हमारा यहाँ पे, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारा कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ में ही 24 मीटर रोड्स का हमें एक एडेड एडवांटेज मिलता है सेक्टर 71 में। अच्छा इन टर्म्स ऑफ अगेन, अगर तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की बात करें, तो हम देयर इज़ अ 60 मीटर्स प्लस 12 मीटर्स 84 मीटर्स रोड प्रपोज्ड, which will go and meet straight onto the 84 meters road which is just in front of our project। और जो आगे जाके कैंडोर IT स्पेसेस आपने देखा होगा सुभाष चौक से when we go towards NH8, तो कैंडोर IT ऑफिस स्पेसेस के पास में, मार्बल मार्केट के पास में, दिस 84 meters road will further open up। अच्छा सो कहने का मतलब कि इस सेक्टर की 71 की माइक्रो मार्केट को अगर तो हम अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पे वी आर हैविंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ 130 एकर्स। और जो हमारी 130 एकड़ है, ये अपकमिंग 6 फेजेस में मार्केट में लॉन्च होएंगे विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। आपको नेक्स्ट 2 साल में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हम 6 बार अपने रेट्स को कैसे इंक्रीज़ करके प्रॉब्ली एक बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस पेस के ऊपर यहाँ पे डेवलप होता हुआ हमें दिखाई देगा, प्लस द टाउनशिप भी अपने डिलीवरी पीरियड्स के हिसाब से इट विल बी कमिंग इन टू प्लेस। वंडरफुल। अब कई लोग जैसे हमारे ऑफिस में आके बैठते हैं और वो लोग बोलते हैं कि सर हमें 10 रुपये लगाने हैं, मतलब 10 रुपये डेवलपर की नॉलेज में 10 करोड़ होते हैं जी। तो अगर किसी ने 10 CR इन्वेस्ट करना है, या कोई NRI है उसको $2 मिलियन इन्वेस्ट करना है, जो लगभग आपका 17.5 करोड़ रुपए अभी हिसाब से बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 4x के टर्म आप। तो अगर किसी ने $2 मिलियन, या कोई इंडियन इन्वेस्टर है, HNI इंडियन इन्वेस्टर है, उसने 10 CR खर्च करने हैं, वो भी रियल एस्टेट में खर्च करना चाहता है, वो फिक्स्ड एसेट्स में खर्च करना चाहता है, वो रेंटल यील्ड भी इंजॉय करना चाहता है जी। वो हर एक चीज़ इंजॉय करना चाहता है, तो रियल एस्टेट अप्रिसिएशन, ROI इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड रेंटल यील्ड्स के ऊपर वो सारी चीज़ें इंजॉय करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं फ्रॉम द ब्रांड स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। श्योर। कि इतनी अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, कौन उनको फुलफिल कर पाएगा, क्या हमें पोजीशन मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई 10 CR लगा रहा है या कोई लगभग 20 करोड़ रुपया लगा रहा है मार्केट में, आज के टाइम पे वो कौन से डाइवर्स पोर्टफोलियो के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर कहाँ लगा सकते हैं SPR के प्रॉपर्टीज़ में। सो सपन, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सिग्नेचर इज। अच्छा, सिग्नेचर ग्लोबल की हम बात करें तो लास्ट 10 years के ऑपरेशंस में वी हैव डिलीवर्ड मोर देन 30,000 dwelling units एंड 22,000 मोर यूनिट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। 22 प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, 14 हमारे प्रोजेक्ट्स अभी
इस नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपको डिलीवरी स्टेजेस पे दिखाई देंगे। अगर तो हम अपने लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो लग्जरी सेगमेंट पे हम ऑलरेडी 37D से अपना लग्जरी सेगमेंट का एडवेंट शुरू कर चुके हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल में अगर तो इफ़ यू सी दैट विद इन द लास्ट ऑपरेशन ऑफ 10 years 10 years ऑपरेशंस में वी हैव ऑलरेडी बीन अ लिस्टेड कंपनी। हम NSE और BSE के ऊपर लिस्ट कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अ शेयर वैल्यू ऑफ IPO में जो हमारा शेयर वैल्यू आया था दैट वाज क्लोज टू समवेयर अराउंड 350 to 370। नाउ वी आर करंटली गोइंग स्ट्रॉन्ग एट से समवेयर अराउंड 1350 प्लस, गोइंग स्ट्रॉन्ग इनटू द मार्केट कैपिटलाइजेशन एज वेल। अगर तो हम रियल एस्टेट में लिस्टेड कंपनीज की बात करें हम, तो सिग्नेचर कम्स इन द टॉप 5 लिस्टेड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर इफ़ यू कंपेयर आर एनुअल प्रोजेक्शन। सो एवरी क्वार्टर हम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में अपनी एक मार्केट डोमिनेंस को भी स्टैम्प करके अपनी पोजीशन को आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी यू नीड नॉट टू इवन थिंक ट्वाइस अबाउट सिग्नेचर, बिकॉज सिग्नेचर का वो प्रॉमिस सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा दिखाई दिया है। व्हेन इट कम्स टू माइक्रो मार्केट सेक्टर 71 में हमारी ये जो टाउनशिप है, दैट टाउनशिप विल बी अ मिक्स ऑफ schools, hospitals, commercial developments, retail malls, grade A office spaces, group housing societies, many clubs. There will be lagoons into it. There will be a 10 acres of golf course just next to Titanium project as well, which will be serving as a particular community की पूरी sports development को भी मद्देनज़र रखते हुए we have come up with the planning of the upcoming 6 phases. सो ROIs अगर तो हम बात करें तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज़ जस्ट 3 minutes अवे फ्रॉम अस। गोल्फ कोर्स अगर तो हम बात करें SPR से फर्दर जाते हुए टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेस वे, तो कैपिटल वाइज अगर तो हम बात करें तो एक ROI में कैपिटल अप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। कैपिटल अप्रिसिएशन तभी आता है प्रॉपर्टी में जब आप उसके इनिशियल स्टेजेस में एंटर करें। सिमिलर टू जैसे 71 SPR पे टाइटेनियम हमारा जो प्रोजेक्ट है, इफ़ यू सी द पेमेंट प्लान में भी हमने काफ़ी स्टैगर्ड तरीके से पेमेंट को एक तरीके से पोजीशन किया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स रीच होएंगी तो आपका मनी आउटफ्लो जाता है। प्लस 1 साल का अगर तो हम आउटफ्लो लें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो हम साल का अगर तो डोमेन लेते हैं तो नेक्स्ट 4 to 5 years में उसकी मैक्सिमम जो आउटफ्लो है वो 20 से 25% से ज़्यादा नहीं जाती है। सो अगर तो हम इफ़ वी आर इन दी माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल, हमने अपने प्रोजेक्ट में कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस और CP मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए वी हैव केप्ट द फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री। हमने फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री करा हुआ है इसके अंदर, सो दैट आप सही टाइम पे एंटर करिए एंड बेस्ड ऑन दी मार्केट एज वेल एज हम जो 6 अपने अपकमिंग फेजेस इसमें लेके आएंगे तो दैट इज़ सर्टन कि हम 6 बार अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे सब। सो राइट नाउ से समवेयर अराउंड हम 18,000 से 17,500 की बात कर रहे हैं। देन देयर आर सम इनॉग्रल्स इनटू इट। सो प्राइस पॉइंट वाइज अगर तो हम बात करेंगे तो इट इज़ स्पायरली हेडेड टुवर्ड्स अप्रिसिएशन इन कमिंग कोर्स ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने दिल्ली मार्केट में जो रेजिडेंशियल्स है, मतलब दिल्ली मार्केट में जो रेंटल्स है, लोग उसकी यील्ड एंजॉय करते हैं समवेयर अराउंड अबाउट 2 to 4%। जी। तो SPR पे लगता हुआ जो ये प्रोजेक्ट है, इस पे हम क्या एक्सपेक्टेड, मतलब हमें नहीं पता, प्री डिटरमाइंड कोई नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि माइक्रो मार्केट खुद में अपनी माइक्रो मार्केट के अंदर भी लोग वर्सेस में रहते हैं। श्योर कि तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ROI फॉर दिस? टू अंडरस्टैंड दैट सपन, अगर तो हम रेंटल और अगर तो हम यील्ड की बात करें तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कैपिटल अप्रिसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी सेट मार्केट्स हैं, सैचुरेटेड मार्केट्स हैं, दिल्ली की मार्केट्स की अगर तो हम बात करें तो वहाँ पे प्राइस पॉइंट्स आर ऑलरेडी ऑन अ सैचुरेशन। जबकि हम बात करें तो गुड़गांव में देर आर सर्टेन सेक्टर्स, गुड़गांव अगर तो 2031 के हम मास्टर प्लान के हिसाब से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ येट टू कम अप वेरी सुप्रीमली इनटू दीज सेक्टर्स। तो उसके हिसाब से अगर तो हम बात करें तो यहाँ पे हमारी कैपिटल अप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो यील्ड के साथ हमें इन फ्यूचर अगर तो हम बात करें तो ROI विल बी वेरी गुड। प्लस हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो सीन बाय विटनेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इनटू द प्रॉपर्टी। तो इसको एग्जांपल अगर तो हम सिंपल तरीके से बात करें तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 16-17 हज़ार के आसपास की डिनोमिनेशन की प्राइस पॉइंट्स की, जो आज
अगर तो हम आसपास के कंपटीशन की बात करें तो देर आर ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स विच आर हॉवरिंग अराउंड 18,000 एज अ रीसेल. हम लोग उस प्राइस पॉइंट पे आने के उससे भी थोड़ा सा और मॉडरेट प्राइस पॉइंट्स पे अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए वी आर सीइंग के नेक्स्ट 6 फेजेस में हम लोग इस प्राइस को समवेयर अराउंड 30 to 35,000 पर स्क्वायर फीट लेके आ जाएंगे. बिकॉज फेज़ 1 जैसे अभी हमने लॉन्च किया है, फेज़ 1 वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स थैंक्स टू ऑल एसोसिएट्स एंड वेल विशर्स लाइक यू. Signature Global has got a very good response for the phase 1. Phase 1 में we are almost sold out and we have very few limited inventories which is left with us. In terms of complete अगर तो हम phase 1 की बात करें तो then there is phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 and phase 6 which is coming back towards SPR. So simple सी बात है, अगर तो सपन हम देखें तो capital appreciation तो हम कमा ही रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, प्लस पोजेशन के बाद अगर तो हम रेंटल यील्ड की बात करें तो हमारा रेंटल यील्ड भी यहाँ पे इट विल बी मच मोर एज कम्पेयर टू अ सैचुरेटेड मार्केट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी है. एब्सोल्युटली, क्योंकि SPR पे हम लोग 71 में अपनी टाउनशिप में, आपने सिर्फ अभी फेज़ 1 की हमने अभी लॉन्च की है. देन देयर इज फेज़ 2 व्हिच इज कमिंग अप. देन देयर इज दिस एंटायर गोल्फ कोर्स व्हिच विल बी कमिंग अप. देन देयर इज फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6. सो 6 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, 6 लॉन्चेस हम लोग लॉन्च करेंगे इन द अपकमिंग 2 years के होराइजन में. वंडरफुल. अब कुछ सवाल जी, कुछ सवाल है कि मुझे अब इस प्रॉपर्टी का पहले तो ओवरव्यू आप प्लीज़ बताइए, एंड ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे दैट विल बी काइंड ऑफ अ रैपिड फायर. श्योर. तो क्विक आंसर्स वुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एंड. मैं पढ़ के ही बात करूँगा आपसे. पहले तो सेक्टर 71, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स एट टाइटेनियम जो आ रहे हैं सेक्टर 71 में? अगर तो हम बात करें, टाइटेनियम इज हैविंग अ मिक्स ऑफ 3.5 BHKs, 4.5 BHKs एंड पेंट हाउसेस. वी आर हैविंग अ 3.5 BHK डिनोमिनेशन इन अ 2780 स्क्वायर फीट, 4.5 BHK डिनोमिनेशन इन 3780 स्क्वायर फीट, 5064 स्क्वायर फीट और 6000 स्क्वायर फीट के पास हमारे पेंट हाउसेस बनते हैं. ठीक है. एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम फेज़ 1 में अभी लॉन्च कर रहे हैं, दे आर क्लोज टू अराउंड 600. जी. ओके. एंड हाउ मेनी टावर्स? एंड द टावर्स आर नंबर ऑफ 7 टावर्स आर देयर, जिसमें से 5 हमारे टावर्स होंगे क्रेसेंट शेप में 4.5 BHK के टावर्स होंगे. 2 टावर्स जो हैं वो 3.5 BHK के हमारे नोज एंड पेटल शेप में. सो इट इज अ 3 to a core एंड 2 to a core. 3 to the core, 3 to a core हमारे 3 BHK अपार्टमेंट्स बनते हैं. 2 to a core हमारे 4.5 BHK अपार्टमेंट्स बनते हैं. ठीक है. इससे एडेड एडवांटेज क्या मिलती है हमें अपन वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 to a core एंड 3 to a core, सो ग्राउंड कवरेज इज़ वेरी लेस. अब ये ग्राउंड कवरेज मैं अगर तो आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर तो हमारे पास एक लैंड पार्सल है तो उस पर अगर तो हम 4 to a core या 6 to a core बनाते हैं तो आप लैंड की कवरेज ज़्यादा रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स उसके ऊपर नीचे बेसमेंट से आपको प्लिंथ ऊपर तक लेवल तक उसको लेके जाना पड़ेगा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 to a core काइंड ऑफ अ डिनोमिनेशन, जो वहाँ पे 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, तो आपका जो कोर है वो कंपैरेटिवली छोटा बनता है, जिसकी वजह से आप ग्राउंड के ऊपर कवरेज कम लेते हैं. सो दैट ट्रांसलेट्स इनटू 90% ओपन एंड ग्रीन एरियाज. परफेक्ट. सो मार्केट की जहाँ पे एवरेज है 75 to 85%, वी आर ऑफरिंग 90% ग्रीन एरियाज, ओपन एंड ग्रीन एरियाज. वर्टिकल लैंडस्केपिंग रहेगी पूरी 10 मीटर्स की. अगर तो हाइट वाइज बात करें तो 10 मीटर्स के दे विल बी एनवेलप ऑफ वर्टिकल लैंडस्केपिंग. फ्लोरा एंड फौना में भी अगर तो हम बात करें तो वी विल बी हैविंग मियावाकी फॉरेस्ट. मियावाकी फॉरेस्ट एक जापानीज़ कंसेप्ट है जहाँ पे नेचुरली फ्लोरा एंड फौना इस तरीके से पोजिशन होती है विच गिव्स अस 35 to 40% मोर ऑक्सीजन. नाउ मोर ऑक्सीजन इज मोर प्रोडक्टिविटी. बायोफिलिक डिजाइंस हैं इसके अंदर. सो द कंसेप्ट ऑफ बायोफिलिक इज लाइक व्हाट? एब्सोल्युटली. अगर तो आप चांगी एयरपोर्ट गए होंगे सिंगापुर, एब्सोल्युटली. सो अगर तो आप रिटेल सेक्शन में आप देखेंगे, सो द नेचर इज कंप्लीटली इंटरफ्यूज्ड विद द कंक्रीट. सो एट डिफरेंट फ्लोर्स, जैसे अगर तो आप हमारी डेवलपमेंट को देखेंगे, मियावाकी फॉरेस्ट्स हैं. देन देर इज दिस ट्रिपल हाइटेड बेसमेंट लॉबीज, 10 मीटर्स की वर्टिकल लैंडस्केपिंग है. एंट्रेंस लॉबी के पीछे देर इज सीनियर सिटीजन्स लाउंजेस, वॉकवेज इसके अंदर है. प्लस ऑन द 30th फ्लोर वी विल बी हैविंग अ कंप्लीट स्काई गार्डन विच विल बी गिवन और विच विल बी पोजिशन एज अ गार्डन इन द टेरेस. 40th फ्लोर पे हम लोगों का दे विल बी अ रूफ टॉप कंप्लीट डेक विच विल बी सर्विंग एज अ रिक्रिएशनल
food and beverages kind of a stop for all the occupants. ठीक है, perfect. And my next question is, are there any additional cost related or like from consumer standpoint कि investing in 71 at Signature Titanium? So Signature Global, Sapan, we need to understand कि Signature Global इस टाइम पे हम लोग बॉक्स प्राइस लेके आए हैं. बॉक्स प्राइस लेकर आए. बॉक्स प्राइस में हमारे इंक्लूजन्स जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली EDC IDCs जो रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 500 to 550 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. अगर तो हम बात करें वी आर एडिंग दी 2 कवर्ड कार पार्किंग्स इन टर्म्स ऑफ अ 3.5 BHK एंड इन टर्म्स ऑफ अ 4.5 BHK वी आर गिविंग 3 कवर्ड कार पार्किंग्स जिसकी वैल्यू 15 लाख और 22.5 लाख रुपए हो जाती है. वी आर ऑल्सो ऑफरिंग अ बेनिफिट ऑफ क्लब मेम्बरशिप विच इज़ कंटिन्यूड. वो सारे सब क्लब मेंबरशिप एस्टैब्लिशमेंट्स प्लस आपका जो गोल्फ कोर्स है, ऑब्वियसली जो चार्जेबल सर्विसेज हैं उसको छोड़ के आप हमारे किसी भी क्लब में जा सकते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो वर्थ ₹10 lakhs. इसको अगर तो हम नंबर्स में अगर तो इसको कंट्रीब्यूट करें तो दिस इज से समवेयर अराउंड 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं आज अगर तो आप अपनी डिनोमिनेशन को फाइनलाइज करते हैं. प्लस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे कुछ इनॉग्रल बेनिफिट्स अभी रन कर रहे हैं विच माइट बी प्लग्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो अगर तो हम देखें तो ROI वाइज अगर तो देखें तो वो 4 साल में अगर तो हम 17,000 को डिवाइड करते हैं तो 4,500 रुपये की वैल्यू बन के आती है. 4,500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली बेनिफिट्स उसको इस पर्टिकुलर EOI मॉडल पे अभी इनॉग्रल बेनिफिट्स मिलते हैं. सो देयर इज़ वेयर दी ROI lies for an investor in sector 71. And the hidden cost wala part also gets covered here. Absolutely, sir, because the GST, which is a government regulation, right, that needs to be paid. There's IFMS एक security deposit होता है building की functionality को run करने के लिए properly. And then there is a PLC. The PLCs are absolutely as known to you. कोई अपनी unit, हर एक unit एक special unit होती है. आप जिस भी unit को आप लेंगे उसकी PLC सेपरेट है. ठीक है. बाकी all costs are covered. Absolutely. And what is the completion date for the project? So the completion date we are talking about 4 years from the date of agreement execution. We are very confident कि हमारे जितने भी projects हमने in past भी deliver किए हैं we have delivered it before time. So एक particular we will try to complete those set benchmarks जो हमने इन प्रीवियस अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. और इस प्रोजेक्ट के भी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट के मैक्सिमम 4 years प्लस के हम डिनोमिनेशन में इसको भी डिलीवर करेंगे. वंडरफुल. एंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी डू वी हैव? 5 tier सिक्योरिटी होती है. ठीक है. सपन वील इलैबोरेटली अंडरस्टैंड दिस. ओके. कि एक पर्टिकुलर रेजिडेंट जब अपनी एक सोसाइटी में आता है तो बेसमेंट से ही उसकी प्राइवेट लिफ्ट्स हैं. द USP इज ऑल्सो दैट हर यूनिट के साथ हम वी आर ऑफरिंग प्राइवेट लिफ्ट्स अलॉन्ग विद 2 to a core and a 3 to a core. ओके. सो एक रेजिडेंट जब अपनी सोसाइटी में जाता है तो अपनी प्राइवेट लिफ्ट में वो एंटर करता है. की कार्ड एक्सेस रहते हैं. ही विल कम अप इन टू हिज अपार्टमेंट ओनली. वो कहीं बाहर किसी एक एरियाज में नहीं जाता है. सो राइट फ्रॉम द RFIDs एंड द की कार्ड एक्सेस जो आपके मेन गेट से आपकी शुरू होंगी दे विल बी विजिटर्स एक्सेस रहेगा आपका बेसमेंट में भी जाने के लिए. बेसमेंट से आपको आपकी लिफ्ट लॉबीज में जाने के लिए देन देयर विल बी अगेन एन एक्सेस कार्ड फॉर द सेम. उसके बाद आप ये लगा के चलिए आपके घरों के ऊपर भी जस्ट बिफोर द एंट्री वी हैव अ वीडियो डोर authorization as well. Okay. So there is a 5 tier security which is I think a very good factor to complete Titanium SPR. And as for the upcoming infrastructure development in this area, जी. तो from the infrastructure point of view की public spaces या government dedicated areas that have been either proposed or in line of proposition, Sure. ऐसे कौन से हैं जो इस एरिया को और खास बनाते हैं? सपन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 से 3 साल में यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज होने वाली. सबसे पहले देयर इज दिस MRTS जो सेक्टर 55-56 से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ जो मेट्रो जाएगी. दैट सेम मेट्रो कॉरिडोर पाथ विल बी कमिंग अपॉन जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे हम 71 SPR पे बैठे हैं. इसी रोड के ऊपर आएगा. अच्छा जी. सेकेंड ऑफ ऑल देर इज दिस दिल्ली अलवर RRTS रैपिड मेट्रो जो बनती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली टू मेरठ का एक एग्जांपल है. वही सेम NH8 पे यहाँ से 3 मिनट अवे की डिस्टेंस पे यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी कमिंग अप एज वेल.
अगर तो हम बात करें तो ISBT और जो MRTS डिपो बनेगा जो द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और यहाँ की कनेक्टिविटी को कंप्लीट करेगा, दैट इज ऑल्सो कमिंग अप इन सेक्टर 36 विच इज हार्डली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। राइट। स्काई पॉड्स की बात चल रही है, स्काई टैक्सीज की बात चल रही है सफर। राजीव चौक CP से राजीव चौक तक की वो जो स्काई टैक्सीज 15 to 20 मिनट्स का रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक 71 और 72 की जो डिवाइडिंग रोड्स हैं वो स्ट्रेट अवे जाके कनेक्टिविटीज़ फ्यूचर में बनने वाली, तो स्काई पॉड्स और स्काई टैक्सी सर्विसेज विल बी हार्डली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। जैसे हमने बताया कि हमारी टाउनशिप जो है वो पूरी की पूरी 6 फेजेस में डिवाइडेड है। तो अपकमिंग आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर तो हम इसको देखें तो काफ़ी ऑग्यूमेंट होनी है, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अपग्रेड होना है, with the elevated corridors also going in and the cyber city too coming up into the place. I think it is headed for spiral appreciation. Wonderful. And what is the process of booking a unit here? So as of now Sapan, we understand that कि हम लोग Signature Global में we are already having a technology partnered BCG, Boston Consultancy Group, so we have an entire draw process which is going on. As of now हम immediately अगर तो आपके कोई बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। EOI भरने के बाद इमीडिएटली देयर इज़ अ पेमेंट अटैच टू इट। आप वो EOI से अपनी पेमेंट करिए और प्रायोरिटी जनरेट करिए। प्रायोरिटी जनरेट करने के इमीडिएटली बाद वील बी सिटिंग ऑन टू द अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट्स। मैक्सिमम 1 दिन से कम में भी आप यूनिट अपनी 9% करके आप अपना बिल्डर बायर तक घर लेके जा सकते हैं। And are there any financing options? Yes. Or home assistance available? Absolutely. हमने एक MLP प्लान इंट्रोड्यूस किया है which is there with Bajaj Finance and Godrej as well। ठीक है। जहाँ पे एक सॉफ्ट EMI की कंसेप्ट लेके जाते हैं हम। सॉफ्ट EMI की कंसेप्ट फॉर एग्जांपल 3.5 BHK में 45 to 50,000 पर मंथ आपको देना है। फॉर अ 4.5 BHK it is 75 to 80,000 which is financed from a premium institution like a Bajaj Finance and a Godrej, जहाँ पे for the next 36 months you have to only pay the soft EMI, so that comes out to आपने 10% आपका दिया, उसके बाद आपके एक soft EMI चलती रहेगी और 36 महीने के बाद आपका एक आपका नॉर्मल एक होम लोन वाला कंपोनेंट आपका शुरू होगा। सो इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग मूव फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इसका काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स भी आ रहा है हमारे पास। एंड फॉर एग्जांपल मैंने जितनी भी सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज़ विजिट की है और आपसे कॉन्वर्जेसन की और आपकी टीम से कॉन्वर्जेसन की, वो सारी थीमेटिक बेस है। मतलब बहुत ज़्यादा आपने नेचर को कंपोनेंट करा है क्रिएट। आपने ये भी देखा है कि लिवेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से जो लोग वहाँ पे रहे, जो बसावट बने, तो देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस आल्सो। एब्सोल्युटली। तो उस सेंस ऑफ हैप्पीनेस को रिलिव और या लेट्स से उस जॉय को मेंटेन करने के लिए लोगों की, सो व्हाट इज़ द करंट थीम? इस थीम क्या है इस प्रोजेक्ट की? तो सपन, जैसे हम टाइटेनियम की बात कर रहे थे तो मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बताया था, बायोफिलिक डिज़ाइंस। सो बायोफिलिक डिज़ाइंस में जो टीम ऑफ कंसल्टेंट्स विच जो हमारे साथ काम कर रही है, सो दे आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट। अगर तो हम अपने कंसल्टेंट्स की बात करें तो देयर इज़ द फर्स्ट कंसल्टेंट्स। अगर तो हम एलिवेशंस की बात करें तो सिंगापुर बेस्ड आपको एलिवेशंस आपको दिखाई देती हैं। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय नेचर। DPC इज़ बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर, जो हमारे इसके लिए पूरी एलिवेशन को डिज़ाइन कर रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट हमारा इसकी पूरी लैंडस्केपिंग वाइज अगर तो हम बात करें तो देयर इज़ NMP डिज़ाइंस, द सेम एजेंसी विच इज़ डूइंग फॉर एन टाउनशिप इन सेक्टर 78। If we talk about the complete set of architecture and layouts, it is NMPFP which is based out of Washington DC, जिन्होंने यार्ड्स पार्क डिज़ाइन किया हुआ है। और ये क्या व्हाई सो स्पेशल? दे आर सो स्पेशल बिकॉज ये सारे वर्ल्ड के हम लोग बेस्ट कंसल्टेंट्स को अपने प्रोजेक्ट पे लेके आ रहे हैं और उनकी पूरी एक्सपर्टीज़ को हम कंप्राइज करके अपनी डेवलपमेंट में इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। प्लस जैसे अगर तो हम बात करें तो MEP विल बी डन बाय सेनेलैक कंसल्टेंट्स, स्ट्रक्चर विल बी डन बाय विनिटेक कंसल्टेंट्स, प्लस देयर विल बी अ ग्रेड A कॉन्ट्रैक्टर विच विल बी डिसाइडिंग सून और वो भी आपको बताएंगे। तो सारे जो इतने अगर तो हम बात करें बायोफिलिक डिज़ाइंस को एक पर्टिकुलर रियलिटी में कैसे ऑगमेंट करना है, तो दीज आर दी पर्टिकुलर वर्ल्ड क्लास बेस्ट कंसल्टेंट्स। क्योंकि जितना इफ माई मेमोरी सर्व मी राइट, तो बायोफिलिक डिज़ाइन में तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर तो ओवरऑल हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की, तो इट इज़ अ लो डेंसिटी काइंड ऑफ ए लिविंग।
अब अगर तो आई थिंक दैट इफ़ यू थिंक एज अ पर्टिकुलर एंड यूज़र, आप अपनी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट में एक इतनी एम्बियंट लिविंग के लिए यू वोंट माइंड पेइंग a particular 1 rupee per square feet maintenance cost more as compared to a concrete jungle which is giving you a kind of a 4 to 5 rupees maintenance cost. So that also will be augmented और उसको भी ध्यान में रखा जाएगा because it is an IGBC green building as well. अच्छा, सारे self sustenance model में आते हैं whereby water recycling is done, whereby the STP plants are already there into the place. The natural filtration of air happens because of the Miyawaki forests. So इस पूरी concept को अगर तुम we join the dots together, we see that this development is definitely going to be a notch ahead in coming times of तो future. ये हम 130 एकर्स ऑफ टाउनशिप में देख रहे हैं. ये पूरे 130 एकर्स में जो हम अपना पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ये जो लेके आ रहे हैं टाइटेनियम SPR, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ. और फ्यूचर डेवलपमेंट्स माइट बी अ लिटिल मोर नॉच अहेड in the future in terms of the layouts as well as in terms of the amenities as well. So we are expecting much Much better more better products from absolutely. Signature. So ये तो थीम की बात हुई. जी Signature का सोना में जी 35 में there's a upcoming project. Sona has always been in our mind from the investor standpoint. But सोना में जो अपबीट हुई है मार्केट की, वो बहुत कोल्ड फीटिश रही है पिछले 20 साल में. मतलब लोग आते हैं जाते हैं, डरते हुए इन्वेस्ट भी करते हैं सोना में. पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट ऑब्वियसली लेट्स से द्वारका नाउ. पहले भी कोल्ड फीट द्वारका के लिए था, बट अब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, यशोभूमि बन गई है, IGI T3 का उसमें बन गया, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बन गए हैं. देन अबाउट 6 किलोमीटर का बैच है वो दिल्ली का, वो कंप्लीट होते ही देन द्वारका वुड बी एन ओपन कॉरिडोर फॉर पीपल टू कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर और टूवर्ड्स बॉम्बे, कनेक्टिंग देम. ये एक हो गया. बट वाई सोना? अब सवाल ये आता सोना है. को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो अभी तक सोना में हो चुकी हैं. जो पहला DMIC कॉरिडोर है दैट जस्ट पासेस ऑन सराउंडिंग्स ऑफ DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ओके. So this corridor will be serving as a fulcrum as of transport and logistics right from Delhi towards beach रास्ते में राजस्थान, then गुजरात, then towards मुंबई. अगर तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को अगर सिंपल इंपॉर्टेंस में देखें तो हमारी ऑलरेडी वहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 1 2 3 4 5 more than 300 families have already shifted in, more than 200 families are already expected to getting shifted within the next couple of months as well. इसी चीज़ को हम लोग एक स्टेप नॉच अहेड लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आज के टाइम पे सोहना का टोल लगता है विच इज़ लाइंग अंडर घामड़ोज एरिया लगता है, विच इज़ वेरी क्लोज टूवर्ड्स दी नेसिल्ड अरावलीज के फुट हिल्स. उसी जस्ट लोकेशन में इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू अनाउंस दैट सिग्नेचर ग्लोबल वहाँ पे अपनी 250 एकड़ में अपनी इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ नेक्स्ट सोहना में लेके आ रहा है. जैसे 130 यहाँ है, वहाँ 250 वहाँ पे 250 एकड़ में हम इंटीग्रेटेड यहाँ भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम लेके आ रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमारे ITES ऑफिस स्पेसेस रहेंगे. उद्योग विहार की तरह वहाँ पे 1 एकड़ 2 एकड़ के अंदर वहाँ पे इंडस्ट्रियल ITES ऑफिस स्पेसेस बनेंगे वहाँ पे. प्लस वहाँ पे हम लोग एक फेज़ 1 में अपनी अपकमिंग 600 दीनदयाल जन आवास योजना के स्टिल्ट +4 पॉलिसी के ऊपर बहुत ही जल्दी वहाँ पे अपने यूनिट्स को लॉन्च करने वाले हैं. हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे स्टिल्ट +4, जैसे हमने अभी आपको वी हैव रिसेंटली गॉन थ्रू न्यू स्टिल्ट +4 की अप्रूवल ऑलरेडी आ चुका है. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आवर कंप्लायंसेस. इमीडिएटली विद इन द नेक्स्ट मंथ और सो, मंथ एंड हाफ, आप देख सकते हैं वहाँ पे 600 ऑड ड्वेलिंग यूनिट्स लेके आएंगे स्टिल +4 में. तकरीबन 1.75 से 2 करोड़ की जो एक आबादी है जिसको घर लेना जिसका सपना है. स्टे ट्यून विद अस. सिग्नेचर ग्लोबल वो आपको अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है जस्ट बिफोर सोहना इटसेल्फ. लोकेशन वाइज अगर तो हम बात करें तो ये और ज़्यादा सुपीरियर लोकेशन है एज़ कम्पेयर टू दी अदर डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग आवर्स इन सोहना. क्योंकि अगर तो हम बात करें तो टोल पे ही ये पूरी टाउनशिप हमारी लाया करती है. तो मतलब बंदा टोल देगा या नहीं देगा? हमारे वहाँ पे 2-3 एंट्रेंसेज होंगे सपन. एक अभी फ़िलहाल की जो एंट्रेंस है आप देखेंगे तो आप जस्ट
कंट्री इन करके एक वहाँ पे रिसोर्ट आता है जस्ट ऑन दी घामड़ोच टोल, वहाँ से ही हमारी लेफ़्ट आप लेते हैं तो यू एंटर आवर टाउनशिप. सो द नेक्स्ट टाइम आप जब वहाँ पे आप आएंगे तो आई विल गाइड यू थ्रू. आप वहाँ पे देखेंगे कि पूरी की पूरी आप ऑलमोस्ट 2 से 3 24 मीटर रोड्स, 250 एकड़ की स्प्रॉलिंग टाउनशिप विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस, ITES के उद्योग विहार में जैसे हमने वहाँ पे देखे हैं कि काफ़ी 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ में वहाँ पे काफ़ी स्प्रॉलिंग डेवलपमेंट्स अच्छी निकल के आई हैं. प्लस दीनदयाल फ्लोर्स, लग्जरी फ्लोर्स जो हम द मार्केट हैड परसीव्ड इट वेरी वेल इन द लास्ट एडिशंस ऑफ आवर फ्लोर्स. ऑलमोस्ट 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास के जो बजट लेवल है उसका जवाब हमें सोहना में मैक्सिमम अगले महीने के आसपास मिल जाएगा. तो मतलब सोना में जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जी, तो इज दैट गॉट लॉन्च्ड? नो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कंप्लायंसेस अपने उसको पूरा कर रहे हैं. ठीक है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा रेराज विल बी फाइल्ड विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स इटसेल्फ. तो रेरा फाइल होने के बाद 4 से 6 हफ्ते मैक्सिमम. अच्छा. आप देखेंगे कि वहाँ पे आर गैलरीज आर ऑलरेडी ऑपरेशनल. ओके. आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको वील हैव अ सेशन एट आवर गैलरी एज वेल. तो वहाँ पे वी आर सून गोइंग टू लॉन्च फ्लोर्स, लग्जरी फ्लोर्स जो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से परसीव किए गए थे. कोई अगर तो चांस मिस कर गया हो हमारे पुराने फ्लोर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो दिस इज़ द राइट टाइम जो वहाँ पे हम लोग इस टाइप के फ्लोर्स लेके आएंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए. परफेक्ट. तो इसके अलावा वेयर एल्स कैन अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट? इसके अलावा अगर तो हम बात करें तो सिद्धरावली NH8 के ऊपर तो मुझे मतलब अब मेरे ये सारे सवाल हो गए हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे पास 10 करोड़ है. मैं अब इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आई एम नॉट एन इंटरव्यूअर एनी मोर. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे क्लाइंट्स दे वॉन्ट टू पुट इन 10 CR. वेयर एल्स दे कैन डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो? वो कहाँ डाल सकते हैं पैसे? जैसे मैंने आपको बताया सपन के 71 में हमारी ऑनगोइंग ये टाउनशिप चल रही है. 71 सोना में हमारी ये टाउनशिप 35 सोना वाली है. 35 से भी पहले पड़ जाता है ये सेक्टर. ठीक है. थर्ड हमारी अगर तो हम टाउनशिप की बात करें ऑलमोस्ट 140 एकर्स की हमारी टाउनशिप इज गेटिंग इनटू शेप इन सिद्धरावली विच इज़ वेरी क्लोज टूवर्ड्स गुड़गांव मास्टर प्लानिंग अर्बन प्लानिंग के हिसाब से हम देखें धारूहेड़ा से भी पहले वो हमारी टाउनशिप आती है विच इज़ नेस्ल्ड इन सिद्धरावली. NH8 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर तो हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वहाँ पे 140 एकड़ में वील बी अगेन गेटिंग दोज ITES ऑफिस स्पेसेस. वील बी हैविंग इंडस्ट्रियल प्लॉट्स. देन वील बी हैविंग दीनदयाल प्लॉट्स एंड मे बी इन टर्म्स ऑफ अगर तो हम बात करें तो प्लॉटेड डेवलपमेंट की जो पूरी एक टाउनशिप है दैट लाइज इन NH8. तो हमारे वो अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है. और अगर तो आगे की बात करें हम 37D में वी हैव आर एज यू हैव सीन द लास्ट टाइम अराउंड 37D में सिग्नेचर टावर हमारा एक आने वाला है विच इज़ अ सिंगल टावर ऑफ 40 फ्लोर्स. सो अगर तो हम बात करें तो वी आर हैविंग इन्वेंट्रीज ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट 6 to 8 months जहाँ पे मार्केट में हम एक के बाद एक लॉन्च करते जाएंगे प्रोजेक्ट्स. These are expected launches. Absolutely. So all these expected launches, मतलब investor can end through construction link plan. Absolutely. So in construction link plan that is one part. आप भी हमारी कॉन्वर्जेशन के बीच में आपने ग्रेड ए डेवलपर्स के बारे में बात हो रही थी फॉर कमर्शियल्स. लोग ये पूछते हैं ग्रेड ए डेवलपर्स लाइक वो डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? पहला. दूसरा, उसमें रेंटल यील्ड में क्या सिक्योरिटी मिलती है और क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है? लोग बोलते हैं गुड़गांव को किसी ABC डेवलपर ने बसाया है, लेट्स नॉट नेम इट, बट वैसे ही दुबई को भी किसी ABC डेवलपर ने बसाया है. सिग्नेचर इज ट्राइंग टू, मतलब जो हमें व्हाट आई कैन फोरसी थ्रू दी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ जहाँ पे पोजीशन है, तो व्हाट आर कैसे कर रहा है कि व्हाई दे आर एक्चुअली पोजीशनड इन ऑल दीज लोकेशन एंड लैंड पूल बहुत ज़्यादा है. हम अगर तो बात करें तो विद इन द लास्ट 10 years हम लोग 10 years में वी हैव गॉन फ्रॉम अफोर्डेबल सेगमेंट, बिल्डिंग अफोर्डेबल सेगमेंट, डिलीवरीज ऑफ अफोर्डेबल सेगमेंट टू दीनदयाल जनआवास योजना के फ्लोर्स, DDJY फ्लोर्स हमने अब डिलीवरी की स्टेजेस पे आ चुके हैं. उसके बाद हम लोग लग्जरी सेगमेंट में हम लोग आए हैं. वी आर नॉट अ पैराशूट ऑपरेटर इन दी मार्केट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्केट में अपनी जगह को स्ट्रेंथ
टू स्ट्रेंथ मूव कर रहे हैं। अगर तो हम बात करें माइक्रो मार्केट्स एज वेल एज कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो सिग्नेचर ग्लोबल के जो प्रोजेक्ट 60-70 लाख रुपए में थे वो आज 2 करोड़ रुपए के मार्केट में बिक रहे हैं। ये रीसेल वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सारी सब प्रोजेक्ट हमारे 93 में अगर तो हम बात करें 93, 79, 37D, 37D1 फॉर एग्जांपल इन प्रोजेक्ट्स के अगर आप नाम और थोड़ा बहुत इनकी ये सारे स्टार्टिंग सिटीज के नाम से जाने जाते हैं जो हमारे फ्लोर्स हैं। कौन सा स्टार्टिंग प्राइस था और अब उनका क्या प्राइस है? 60-70 लाख रुपए के डिनोमिनेशंस में हमने जस्ट पोस्ट कोविड ये लॉन्च किए थे, जो आज इन्वेंट्रीज वहाँ पे जाके 2 करोड़ के आसपास की हमारी टच कर गई हैं। तो मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बसावट है इधर, ऑलरेडी यहाँ पे बसावट है इन सारे सेक्टर्स। जैसे हम 37D की बात करें, 81 सेक्टर की बात करें, 92 की बात करें, 93 की बात करें, 63A की बात करें, तो इन सारे सेक्टर्स में बसावट है। प्लस लोगों ने कैपिटल एप्रिसिएशन कमाया है इसके ऊपर। ठीक है, एक प्राइस पॉइंट के ऊपर एक इन्वेस्टर या फिर एक एंड यूज़र एंटर करता है, और आज जब हम पोजेशन जब वहाँ पे देने वाले हैं, तो देयर इज़ अ कंप्लीट पैराडिम ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI विच यू कैन सी, जो विटनेस करी गई है पिछले लास्ट 3 से 4 साल में सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ओके जी। तो टैक्स बेनिफिट स्टैंड पॉइंट व्यू से लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं सिग्नेचर ग्लोबल में? सी टैक्स के लिए आपको अगर तो एक हाउस होल्ड की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, एक हस्बैंड और वाइफ जो वर्किंग सेगमेंट है गुड़गांव में आज के टाइम पे, एवरी मंथ ऑन मंथ अगर तो हम प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट्स को अगर तो डीपली स्टडी करें, सो देयर आर 40,000 बायर्स विच इज़ एडिंग अप मंथ ऑन मंथ टू दी पर्टिकुलर कंप्लीट डिमांड साइड ऑफ गुड़गांव। बट अगर तो हम सप्लाई साइड ऑफ गुड़गांव की बात करें, देयर आर नॉट मोर देन 3,000 प्रोजेक्ट्स टू अगेंस्ट अ ऑगरिंग डिमांड विच इज़ बिल्डिंग ऑन मंथ। तो मतलब ये जो 3,000 अपार्टमेंट्स की या इन्वेंट्रीज की बात करें, तो ये टोटल 3,000 इन्वेंट्रीज हर महीने आ रही है मार्केट हर महीने नहीं, अगले 2 से 3 महीने के अगर तुम स्प्रेड की बात करें मार्केट में, देयर आर मेनी। ये क्वार्टर की बात हो रही है? इस क्वार्टर के जैसे अगर तुम बात तो अगर इस क्वार्टर में अगर वी आर एक्सपेक्टिंग लेट्स से 2,000 to 2,000 के अपार्टमेंट्स हो गए या फ्लोर्स हो गए, इन टोटल इन सारी इन्वेंट्रीज को मिला के उसके अगेंस्ट 40,000 लोग खरीदने बैठे 40,000 लोग खरीदने बैठे हैं। ये मैं नहीं बोलता, ये NCR प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट्स बोलती है। गुड़गांव मास्टर प्लान जो अब 2041 की तरफ जा रहा है, यू कैन गो थ्रू इट वेरी वेल, आपको समझ में आएगा कि गुड़गांव में सिर्फ और सिर्फ आसपास के एरिया से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स विच इज़ फ्लाइंग फ्रॉम USA as well, which is flying from Canada as well, which is flying from the developed nations। दुनिया के हर कोने से जो NRI मार्केट्स की अगर तो जैसे हम बात कर रहे थे पहले, NRI मार्केट्स इज फाइंडिंग ROI yields नेग्लिजिबल। वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी के ऑलरेडी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि प्रॉपर्टी अब डेप्रिसिएशन की तरफ जा रही है। ये हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज की, डेवलप्ड नेशंस की बात करें। चाइना का जो पूरा क्राइसिस हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि इन्वेंट्रीज के जो प्राइसेस थे, गवर्नमेंट ने उनको इतना एग्जॉर्बिटेंटली हाई कर दिया, द इंट्रिंसिक वैल्यू उस प्रॉपर्टी की उतनी नहीं थी। अच्छा, दैट इज़ वाई इट इज़ हेडेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर क्रैश। जो आज चाइनीज़ प्रॉपर्टी मार्केट की क्रैश जो है वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को रियल एस्टेट के टर्म्स में हिला रही है। लेकिन इंडिया में अगर तो हम बात करें, जो स्पेशली हम अगर तो गुड़गांव दिल्ली NCR सेगमेंट की अगर तो हम बात करें, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन वैल्यू है और जो प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर पूरा वर्ल्ड से जो एक इन्वेस्टमेंट पूरा फ्लो कर रहा है गुड़गांव में, प्लस विद द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ ऑगमेंटेड एंड टू मेक गुड़गांव अ वर्ल्ड क्लास सिटी इन द नेक्स्ट 4 to 5 years, तो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ वाई गुड़गांव विल ऑलवेज बी इन टू पिक्चर इन द नेक्स्ट 4 to 5 years एज वेल। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। अब मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ डू प्रॉपर्टी प्राइसेस इन दिस एरिया कंपेयर टू सिमिलर लोकेशन इन NCR? ये कैसे कंपेयर, हाउ डू वी देन कंपेयर ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नेचर with the existing capital appreciation, for example people who have already invested in South Delhi or let's say West Delhi, कई लोगों ने आज के टाइम पे यमुना पार्क की तरफ भी जाना स्टार्ट कर दिया, they are actually going across। तो सपन इसको अंडरस्टैंड कर लें, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। then why गुड़गांव? दिल्ली में अगर तो हम एक बात करें अच्छे एक रिहायशी इलाके की, GK की बात करें या साउथ दिल्ली की बात करें, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे एक गज वाइज अगर तो हम कंपेयर करें पर एक कोठी या फिर एक बंगला या फिर एक प्लॉट का अगर तो बात करें तो
पर गज की अगर तो हम बात करें तो आपको कितना लगता है, क्या वहाँ की कॉस्टिंग रहेगी? 3 सवा तीन तो हम यहाँ पे डेवलपिंग एरियाज में 73 सेक्टर, जैसे 71 सेक्टर, यहाँ पे जो डीएलएफ की जो टाउनशिप है उसकी अगर तो बात करें तो वहाँ पे टच कर रही हैं 3 से सवा 3 लाख रुपए पर गज। ओके। अगर तो मैं डेवलप्ड मार्केट्स जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं साउथ की बात करूँ, तो 30 लाख रुपए पर गज के वहाँ पे रेट्स हैं। Okay. यहाँ पे हम 3 से सवा 3 लाख रुपए के गज की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सैचुरेटेड मार्केट में एक क्या प्राइस पॉइंट पे आज जाके एक प्रॉपर्टी हो चुकी है। 30 से सवा 30 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है, आपको क्या लगता है अगर तो मार्केट में एक थोड़ी सी भी करेक्शन आएगी तो 3 लाख रुपए, सवा 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है, या 30 लाख रुपए, वो कौन सी हिलेगी? मेरे हिसाब से 30 लाख रुपए इज हेडेड टूवर्ड्स करेक्शन रादर देन 3 लाख रुपीज़। सो आप देख सकते हैं कि गुड़गांव की अगर तो हम बात करें तो गुड़गांव में इट इज़ हेडेड टूवर्ड्स अप्रिसिएशन इन दी कमिंग टाइम्स एज वेल। हमारी पर्टिकुलर अगर तो पूरी इकोनॉमी वाइज अगर तो बात करें, इंडिया इज़ इन द बेस्ट शेप ऑफ इट्स एंटायर कंप्लीट ऑपरेशंस। हमारी बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है, वी आर गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अभी अगर तो हम देखें तो जीएमडी का काफ़ी अच्छा फोकस आ गया है। द रेरा इज़ कमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। Compliances वाले players like Signature and other players in the market will be coming a step ahead as compared to a fly-by-night operators. Correct. Market correction is always good for developers. वंडरफुल। सो एक्चुअली हर एक डेवलपर के तो हमने सवाल कर लिए कि फ्रॉम द डेवलपर स्टैंड पॉइंट वी ऑल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बायर्स, वी ऑल्सो अंडरस्टूड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक इन्वेस्टर को एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है कि मैंने किसी एक्स ने फॉर ABCD उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब उन्होंने रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन्जॉय कर ली, जो उनके बेनिफिट्स थे वो इन्जॉय करके दे वांट टू एक्चुअली कम आउट। तो फ्रॉम द एग्जिट स्टैंड पॉइंट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स टू एग्जिट देयर इन्वेस्टमेंट? सेकंड, इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर रीसेल ऑफ द यूनिट्स इन दीज प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू गेन? सो जैसे हम बात करें मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग 6 और फेजेस यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है। अगर तो हम बात करें तो रीसेल मार्केट को ऑगमेंट करने के लिए वी वांट एज सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप, हम लोग अपने इन्वेस्टर्स के साथ खड़े रहने की पूरी कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरी सपोर्ट विच कैन बी डन फ्रॉम द कंपनी। अगर तो हम बात करें तो टाउनशिप कैन बी कंपेयर टू अ टाउनशिप। 130 एकड़ हम लोग यहाँ पे टाउनशिप लेके आ रहे हैं। देयर विल बी ओनली कपल ऑफ टाउनशिप्स एज वेल इन दी मार्केट एज ऑफ नाउ जो ऑपरेट कर रही हैं जी। मैं अगर तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूँ तो हमारे फर्स्ट ट्रांसफ़र जो है दैट इज़ फ्री। अगर तो फर्स्ट ट्रांसफ़र हम किसी और टाउनशिप का अगर तो लेके चलें तो 500 रुपये, 550 रुपये प्लस GST 18% की उसके ऊपर 600 साढ़े 600 रुपये हो जाता है। अगर तो हम एक 2500-3000 स्क्वायर फीट के ऊपर भी लेके चले तो एक 15 से 18 लाख रुपए का एक ट्रांसफ़र फीस बन जाती है। वर्सेस एक मेरे यहाँ पे अगर तो हम सिग्नेचर में अगर तो बात करें तो हम लोगों ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स में 37D जैसे हमने डीलक्स DXP लॉन्च किया था, ऐसे ही हमने 71 टाइटेनियम में वी आर कीपिंग दिस फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री। तो मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर 500 रुपये पर स्क्वायर फीट का आप एप्रिसिएशन ज़्यादा लेके जाएंगे रादर दैन आप डेवलपर को 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आप ट्रांसफ़र चार्जेस दें। तो मतलब ये जो ट्रांसफर चार्जेस है, इज इट विद इन द इट्स फ्री फॉर द फर्स्ट बायर, फॉर एनी फर्स्ट बायर? एनी फर्स्ट बायर। इट डज नॉट नेसेसरी। अगर तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं मुझसे तो आप 25% पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यू कैन एग्जिट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा जी। और फिर इसकी रीसेल वैल्यू की अगर रीसेल वैल्यू अगर तो हम बात करें तो जैसे एक प्रॉपर्टी में रीसेल वैल्यू का एक रीसेल, क्योंकि हमें सेकेंडरी मार्केट बात समझना है बिकॉज़ एक रीसेल का ना एक साइकिल होती है। रीसेल मार्केट में अगर तो हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो एज सून एज दी स्ट्रक्चर कम्स अप आउट ऑफ द बेसमेंट और फिर वो सुपर स्ट्रक्चर की स्टेजेस पे पहुंचता है, फिर उसके बाद वो फिनिशिंग की स्टेजेस पे पहुंचता है और उसके बाद वो लास्ट हैंडओवर की स्टेज पे पहुंचता है। तो ये 4 स्टेजेस में सबसे ज़्यादा रीसेल की वैल्यू प्रोपेल फॉरवर्ड करती है। तो हम अगर तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर तो आप हमारे पेमेंट प्लान्स को ध्यान से देखें तो हमने कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड भी दिया हुआ है सफिशिएंटली इनफ कि 1 साल में आपके पास 40% की पेमेंट ना आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 20 से 25% की पेमेंट आए। सो जितना आप उसके अंदर मतलब आप अपना आउटफ्लो बना रहे हैं, ROI भी आपको उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेट होती है, जो विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सेक्टर 71। परफेक्ट। सो विनय जी,
मेरे तो सवाल खत्म हुए and it was lovely talking to you. I Actually, hope Sector 71. Sector 71 we've actually solved a lot. मेरे को काफ़ी हद तक हमारे viewers को and first time home buyers, investor communities, उन लोगों को from the investment point of view for their अगर उन्होंने अपना घर बनाना है इसको 71 को इस टाउनशिप का पार्ट बनना है, they would love to understand in depth. हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पूछने की कोशिश की है. कुछ रहेगी वो I'll keep asking you, keep poking you about it. Thank you so much once Sure, again. sure. Axiom का कैमरा यहीं आपकी इजाज़त लेगा. Thank you so much. We are on the mission of making house buying or home buying as simple as buying a car. We'll stay connected for much more episodes ahead. Thank you so much. Stay tuned, like, subscribe to the channel. Thanks a lot.